Morning everyone. Today we will study in grammar made easy part 3 chapter 7 a and the. Let's start. A and the are called articles. Article as they do not refer to any particular person, place, animal or things. A and indefinite articles and the is definite articles. यहाँ a और n जो है वो indefinite article है और यहाँ जो the है वो definite article है. और indefinite और definite में क्या डिफरेंस है? लेट्स सी. आपका दोस्त आपको आके कहता है आई वॉन्ट अ बुक. आपका दोस्त कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं लेकिन उसे कौन सी बुक चाहिए वो उसने तो बताया ही नहीं. तो ये जो है वो इनडेफिनिट बुक है, यानी उसने वो नहीं बताया कि उसे कौन सी बुक चाहिए. लेकिन आपका दोस्त आपको बताता है आई वॉन्ट द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे. तो आपके दोस्त को तुरंत ही समझ आ जाएगा कि उसे कौन सी बुक चाहिए. तो वो जो बुक है जो उसने कल दी थी वो बुक अगर वो मांग लेता है तो वो है डेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन जो हमने आगे देखा. यहाँ जो नाउन है उसका कॉन्सोनेंट साउंड बी सी डी एफ जी एच जे से स्टार्ट होता है. उसके आगे यानी बिफोर इट हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे ए डॉक्टर, ए स्टूडेंट, ए पेशेंट एंड ए हेड. उसी तरह से वॉवल साउंड में भी नाउन का यूज़ हम ए ई आई ओ एंड यू आर vowels. We also know that we use n before a word beginning with a vowel sound. N is used before a word beginning with a vowel sound. Example is an elephant, an umbrella and ice cream. अब हम यहाँ देखेंगे हॉर्स और आर. यहाँ दोनों के स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं. जैसे एच ओ आर सी ई हॉर्स, एच ओ यू आर आर. तो यहाँ जो एच ओ आर एस ई हॉर्स है वो एच जो है वो कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ए आर्टिकल यूज़ होता है क्योंकि उसका कॉन्सोनेंट साउंड हॉर्स है. और यहाँ एच ओ यू आर है वो एच कॉन्सोनेंट है फिर भी उसके आगे एन यूज़ होता है क्योंकि उसका साउंड वॉवेल है आर. ओके, नॉट द वर्ड्स आर एंड एर बिगिन विथ अ वॉवल साउंड एज द कॉन्सोनेंट. H is silent, that means not pronounced. Thus, the opening sound is that of a vowel. So, although the words beginning with a consonant, they are pronounced as R and R. Hence, we say an R and R. यहाँ जो H है वो साइलेंट होता है तो हम साइलेंट का मतलब होता है नॉट प्रोनाउंस्ड, यानी हम उसे एच के साउंड से जैसे हॉर्स ऐसे हमने जैसे आगे देखा इस तरह से हम वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हम यूज़ नहीं करते.
तो जो वोवेल साउंड हम यूज़ करते हैं तो उसके आगे एन आर्टिकल का यूज़ होता है। ए इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ है द वर्ड्स यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी एंड यूनिकॉर्न begin with the consonant sound U, and thus we use A before them even though they begin with a vowel. यहाँ यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी एंड यूनिकॉर्न जो वोवेल से स्टार्ट होता है लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है U, तो उसके आगे हम ए आर्टिकल यूज़ करते हैं। The definite article. We have learned in book 2 that we use the when we are talking about a particular or definite person, place, animal or things. Thus, the article the is called the definite article. Example is, the girl is in the pink dress in my sister. Have you read the fable, The Fox and the Straw? There are some more uses of the. Let us study some of them. When a singular noun is used to represent a whole class of persons, places, animals or things, as the dog is faithful animal, the army guards the nation against enemies, the lotus is considered to be a holy flower, before the name of the certain place, as the Ganges is said to be a sacred river, we saw the Eiffel Tower when we went to Paris, the Sahara is the largest desert in the world, before the name of certain books. Have you read the Ramayana? The Bible is a holy book. Before name of certain things which are unique of their kinds. The sky is blue. The earth rotates around itself. Before musical instruments, Hari plays the flute. Sam plays the violin. Before the est and most adjective that fall under form 3. Sheila is the tallest girl in the class. The definite article यानी वो फिक्स्ड होता है और स्पेसिफिक होता है। We use the when we are talking about a particular और डेफिनेट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जैसे हमने पहले देखा कि हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, वो फिक्स्ड होता है, उसे स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं, वो डेफिनेट आर्टिकल है। जस्ट एग्जांपल यू, सन, लिबर्टी स्टैचू, हिमालय। तो ये जो है वो फिक्स्ड है और स्पेसिफिक है और यूनिक भी हम इसे कह सकते हैं। और तो इसी द सन, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द हिमालय, तो ये सब जो है वो ए एन दी इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हमने सब यहाँ देखा। Okay, now this chapter is complete here. Now we will meet again with another chapter. Thank you.